Okay, so good evening, YouTube. Let's see who's gonna be the first one today. So, good evening, Mohit sir, and good evening, Simi ma'am. How are you both? Good evening, Pooja ma'am. I'm good, thank you. And how are you? Good evening, Divyanshi ma'am. How are you? Sorry. I'm also good, Mohit sir. Thank you. Divyanshi ma'am, I'm good. Thank you. Simi ma'am, I'm good. Thank you. And how are you? And how was your day? Everyone, please just let me know how was the day. My day was very productive. Was full of some activities. How are you all? So, good evening, Ranjana ma'am. It's good to see you well before the time. Day was productive means you studied a lot, didn't you? Ranjana ma'am, I'm good. Thank you. And how are you? Sorry, excuse me. Thank you. Day was productive. Hmm. Good evening, Priya ma'am. I'm good. Thank you. And how are you? My day was good. Okay. Thank you. What all did you do? जो कल भी मैंने आपसे बात की थी कि क्या क्या किया आप लोगों ने. So what all? ठीक है. I'm good, sir. Thank you. And good. Thank you. I am under weather. Oh, I really feel for you, Pooja ma'am. But what happened to you? Good evening, Sanidhya sir. I'm good. Thank you. And how are you? Good evening, Jatin sir. I'm good. Thank you. And how are you? Well, so my question was very simple because if you answer that, you will practice future, uh, not future, past sentences and many sentences in just one para. The question was, what all did you do today? So आप मुझे मल्टीपल बता सकते हैं जैसे आई स्टडीड अ लॉट बोल सकते हो. आई स्टडीड लाइक एनीथिंग बोल सकते हो. आई कुक्ड समथिंग. अगर आपने कुछ बनाया है तो आप उसके बारे में ज़रूर बताइए. गुड इवनिंग यादव सर. हाउ आर यू? वेल आई एम गुड. थैंक यू. Headache and little bit cold. Oops. Maybe I think because of weather change also. And sometimes it's just because of tiredness also. Maybe I think uh, don't know about your schedule, but your schedule may be hectic. Just because of that, I studied like anything. I went to college. Okay, you went to college. These are one sentence. You're making one sentence. I want you to make at least your answer in two or three sentences. Add details. Fine, because my question was, what all did you do? So try to make you know uh, two three sentences at least, and after that, in the end, you can say blah blah. So like if you ask me, so what all did you do? So I watched Shurya movie. Okay, this is Shaurya. Yeah, Shaurya. Okay, Shaurya movie. Yeah, just because of tiredness. So I think you need
some rest, and I think you should. और थोड़ा धमका के अगर मैं बोलता तो कहता you'd better, you know. I studied like anything, and I made Maggie, and I solved a lot of questions and blah blah. Good. This is better, you know. So good evening, Rohan sir. How are you? I went to my office, then I afternoon okay, then in the afternoon वो sentence ऐसे हो जाएगा. Then in the afternoon I went to market, then I came my home, then I did second form हो जाएगी. I did some house chores, then I cooked dinner and blah blah. New dream catcher looks wonderful. No, no, that's Mohit sir. I think if you want to see the newest, that is new, but this one is the newest. If you see the people, those who love pink color, so it's for them. So this is the newest, which I completed today, or just in the evening I completed it, and my client is a young lady. So usually uh, females love pink color. So wow, the green one is amazing. No, you know, because it's very far, and yeah, actually, but if you ask me personally, so the yellow one is more gorgeous than the green one. Okay, Kabira ma'am, thank you. Yeah. So good evening, Yashi ma'am. How are you? Rohan, I'm also fantastic. Thank you. Quite busy with a lot of stuff, nowadays, because I've got orders for dream catchers. I've got orders for a scrapbook. So that scrapbook album is there, and it is being made already. Dream catchers orders I have, and because of my tattoo tour, I've I've received many queries and many bookings. So I have to plan for their designs also, because I just don't want to make anything which is available on the internet. So I like to do the customization. So I'm having those people also. So the life is going through, means, I would say that don't have much time to think anything else. Even people think about future, okay, what they are going to do, maybe on holy and other things and all. But for me, it's my day starts and it ends, and actually the time passes all too soon. I never know actually how the time passes. So many people think that the day seems so long, but for me it's not like this. For me, the day passes all too soon. uh, I'm also good, Yashi ma'am. Thank you so much. So future is unpredictable. Yeah, it's unpredictable, but most of us, because I'm also one of them. Now I'm not one of them, but I used to be like the one who usually think a lot about future. That what is going to be in the future, what the future holds for us. I've seen your Jaipur Heritage video. It was amazing. Thank you so much, Mohit sir. Yeah, yesterday I was there, and so I thought, because usually what people do is when they visit good restaurants, they make they click their own selfies and everything. So not wrong, but so because I run my blogging page also.
on Instagram. So I thought to, it was my first like video shoot, so I thought, why shouldn't I shoot a good video of that particular restaurant, because it was really amazing. So I think in future I'll do more. Good evening, Sudhir sir. Uh, did you wish me before this, Sudhir sir? Good evening. I'm so sorry I missed, I guess, your message. I'm good, thank you. And please tell me about you. Well, it's time to start today's session, and because it's 10 o'clock, and today's session is all about vocabulary. आज हम लोग vocabularies को लेकर बात करने वाले हैं, एंड एडवांस, वैसे अगर मैं बात करूँ तो देर आर ओनली 5 वर्ड्स जिनके बारे में मैं बात करूँगा, एंड बट यूजुअली वो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होते, एंड इफ यू रियली वांट, जो मैं आपको बताना भी चाह रहा हूँ, दैट इन कमिंग डेज, because today is 74th day and tomorrow it will be 75th day, and after that हम लोगों के पास जो मैक्सिमम टाइम रहने वाला है, दैट इज वो है हमारा प्रैक्टिस सेशन का. सो वेल, टुडे सेशन इफ आई टॉक अबाउट, सो मैंने बात की, अभी हम लोग वोकैबुलरी के बारे में बात करने वाले हैं. And the first word, here we go. The first one, I must tell you, the first one is uh, स्मीटन. अच्छा, आप लोग मुझे इसका जैसे मैंने वर्ड लिखा, आप लोग इसको गूगल पे सर्च करके मुझे और भी बता सकते हो. इससे रिलेटेड बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स भी ढूंढ सकते हो, बट मैं चाहूँगा आप लोगों से, जो मैं पूरे इस कोर्स के ड्यूरेशन में हमेशा एक बात बोलता रहूँ. गुड इवनिंग हेमंत सर. आई एम गुड, थैंक यू, एंड हाउ आर यू. कि आपको अगर किसी वर्ड का मीनिंग एग्जैक्टली पता हो जाए, ठीक है, आप एग्जैक्टली समझ चुके हैं उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, फिर उसको एक यूज करना समझ लीजिए कि इसको यूज कैसे करते हैं, एंड देन ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस. जो ये वर्ड बता रहा हूँ, स्मिटन, इट्स इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड. एक्चुअली ये बहुत खूबसूरत शब्द है, एंड इसका मतलब है एक्चुअली, पहली चीज, इसको जब आप समझोगे तो मैं आपको ये भी कहूँ कि जब कोई वर्ड आप देखते हो तो आप उस समय उससे रिलेटेड कम से कम 2-3 चीजें जरूर ध्यान कर लो कि ये एक्शन है या नॉन एक्शन है. और अगर ये नॉन एक्शन भी, बिकॉज आज के सेशन में ये चीजें होने वाली है, और मैं आने वाले टाइम पे भी इसी तरीके से आप लोगों से बात करूंगा. तो स्मिटन जो वर्ड है, इट्स एन एडजेक्टिव. ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, मतलब अगर मेरे शब्दों में कहूँ तो ये क्वालिटी है, ठीक है. अब स्मिटन क्या हो गया? स्मिटन इज एक्चुअली कंडीशन कि जिस समय एक इंसान, अच्छा अब इसको यूज कैसे कर लोगे, कॉमन सी चीजें हैं. तो आप मान लो कि आपको अगर सेंटेंस को यूज करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये क्या बता रहा है, किसी इंसान की कंडीशन बता रहा है. किस तरह की कंडीशन? जब इंसान किसी चीज से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होता है, या फिर जब वो किसी चीज़ को बहुत पसंद करना कर चुका होता है, या फिर वो उस चीज़ से बहुत उसको प्रेम हो जाता है. सो उस समय उस इंसान की कंडीशन स्मीटन होती है. जैसे आप सबके पास एक वर्ड ऑलरेडी है, फोन्ड वर्ड दिया हुआ है ना. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोग फोन्ड वर्ड डिस्कस कर चुके हैं. अब आप सोचो कि फोन्ड भी एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत लोगों के पास है, इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज, बट स्मीटन वर्ड सबके पास नहीं होगा, ये तो मैं आपको बता देता हूँ. सो आप जब कोई सेंटेंस बनाना, तो पहले क्या करना कि नॉर्मल सेंटेंसेस बनाना शुरू करो. और नॉर्मल सेंटेंस मतलब क्वालिटी या कंडीशन बताने के लिए प्रेजेंट की इंग्लिश क्या होती है, आप अपने आप से शुरुआत करो. आई एम स्टन, आई एम स्मीटन, ठीक है. अब आप इंग्लिश में 2 तरीके से बता सकते हो. आई एम स्मीटन बाय. एक तरीका है कि आप बी वाई, बाय प्रपोजिशन यूज करिए, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप मतलब मैं ये इसलिए बताऊंगा बिकॉज जब आप देखेंगे लोगों से, द पीपल हु आर इन लव एक्चुअली, तो वो किसी ना किसी इंसान से बहुत ज्यादा एक्चुअली प्यार करते होंगे. तो इसका मतलब है उस जगह पे यूज कर सकते हो, आई एम स्मीटन बाय. किसी भी पर्सन का यहाँ नाम लगा सकते हो, ठीक है. एक तरीका ये है. यहाँ पे आप किसी चीज का नाम भी लगा सकते हो, जैसे आई एम स्मिटन बाय ड्रीम कैचर्स, ठीक है. तो इसका ये मतलब समझिए आप, अगर आप
जस्ट इमेजिन करिए कि आप मेरे घर पे आते हैं, मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पूरे घर में आपको 50, 60, 70, 100 के करीब ड्रीम कैचर दिखाई दें, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे यार कि क्या पागल हो गए? मतलब इतने सारे ड्रीम कैचर्स! मतलब आप सोचिए, आप कई लोगों के साथ में है ऐसा। देयर आर सम पीपल, जैसे दे आर स्मिटन बाय, यू नो, आप इमेजिन करके देखिएगा कि कुछ लोग को जूते रखने का बड़ा शौक टाइप में आपका हो गया, दे आर एक्चुअली इन लव विद, यू नो, तो बहुत बहुत ऐसे लोग हैं आजकल जो स्नीकर्स, मतलब आई सॉ मैनी पीपल दैट दे स्पैन, ओके, जैसे जतिन सर ने कहा कि सर आई एम स्मिथन बाय शूज। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हजारों रुपए खर्च कर देते हैं शूज को लेकर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, मीन्स, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं वो हैं, देयर आर सो मेनी पीपल जिन्हें, you know, smitten by my mom, so I'm smitten by my mom, so अच्छा, ये आपने क्या अब करना शुरू किया है ना? तो ऐसा यूजुअली वी डोंट से दैट, सो आई एम स्मिटन बाय टैटूज, ओके, या सिमी मैम बोल सकती हैं ना, बिकॉज इट हैपन्स। मान लो कि आपने कभी टैटू नहीं करवाया हो लाइफ में, बट वंस यू गेट टैटूड, आप एक बार टैटू करवाते हो, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये होता है कि वंस यू गेट टैटूड, सो आफ्टर दैट आपको ऐसा लगता है कि आफ्टर दैट मैं एक और करवाऊँ, जल्दी से करवाऊँ, तो उसके बाद मैं एक और करवाऊँ, उसके बाद मैं एक और करवाऊँ, मतलब अगर आपके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है, एटलीस्ट यू आर एबल टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट। तो जिस तरीके से आप रहना चाहते हैं, आपको लगता है, आई एम स्मिटन बाय ईयरफोन्स। देखिएगा हेमंत सर, जैसे कि कि आप वाक़ई में ईयरफ़ोन से रिलेटेड अगर हैं, तो क्या, लाइक आप बार-बार कुछ खरीदते रहते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो आप ये बोल सकते हैं, पर्सन के लिए बोल सकते हैं, स्मिटन बाय समबडीज़ ब्यूटी। कुछ लोगों की खूबसूरती से सेंटेंसेस बनते हैं, है ना? एंड समटाइम पीपल से दैट स्मिटन बाय I'm smitten by कुर्तीज़, ओके, जैसे दिव्यांशी मैम ने कुर्तीज़ के बारे में बताया है, और आपको ये बता रहा हूँ कि देखो, एक तो ये तो लव वाली बात हो गई। अब आप एक सोचो, आप इन्फ्लुएंस्ड भी हो, इन्फ्लुएंस्ड इज़ थर्ड फॉर्म, एक और वर्ड आ गया देखो। आई एम अगेन टेलिंग यू, क्योंकि आप जब कोई एक नया वर्ड सीखते हो, और जब आप उसको और डीप में जाते हो, उस वर्ड की और खोज करते हो, उसको और समझना चाहते हो, सो आपके पास मल्टीपल वर्ड्स आ जाएँगे। So I'm smitten by kurti, I'm smitten by Western dresses. Okay, I'm smitten by clothes. I'm smitten by hair bands, hair clips. Okay, गुड। सो आई जस्ट वांट टू से कि अब आप सोचो कि इन्फ्लुएंस, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, जैसे देयर आर सम पीपल हु आर, स्पेशली आजकल के जो यंगस्टर्स की मैं बात करूंगा, तो दे आर स्मिटन विद, अच्छा, बाय के अलावा आप विद भी लगा सकते हो, तो विद प्रपोजिशन भी यूज हो सकती है। यूजुअली विद जब आप यूज करोगे, तो उसके बाद आप किसी पर्सन का नाम मत लगाना। यूजुअली जब आप पर्सन से होंगे तो हमेशा बाय लगा के बात करिएगा, विद लगा के बात करोगे, सो आई एम स्मिटन विद बाय क्लोथ्स, विद शूज, बाय शूज, बाय नेल पेंट्स, ओके, गुड। सो वेल, आई वाज टॉकिंग अबाउट हियर कि आप इसको समझना, एक और प्रीपोजिशन आ गई है, विद की बात कर रहा हूँ। सो सम पीपल आर स्मिटन बाय पब्लिसिटी। तो कई लोग जो है वो पब्लिसिटी से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी में, मीन्स यू मे हैव सीन सम इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, उनको इन्फ्लुएंसर्स का दर्जा मिल चुका है शायद, मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे दे मेक रील्स, एंड समटाइम्स उनकी कोई एक रील जो बहुत वायरल हो जाती है, उसके बाद आप जहाँ समझते हैं उनके ऊपर कितना लाइक फोर्स हो जाता है टू मीन्स, भूल जाएँगे नहीं तो फिर वही वाली बात है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सो वो कुछ भी अजीब-सी भी कुछ बनाते हैं, तो भी उसके ऊपर हज़ारों व्यूज़ आते हैं, समटाइम पीपल सी कि व्हाट इज़ दिस? सो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे इवन रील्स भी बना रहे होते हैं, कुछ काम की चीज़ें भी बना रहे होते हैं, बट मेरे को भी कई बार ऐसा होता है, आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई व्हाई डोंट पीपल actually support real creative people और artists की बात होती है। I'm smitten by books, good, so you can say that। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, I'm in love with this, so आप उस लव को वहाँ से टाके स्मिटन वर्ड यूज कर सकते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल इंग्लिश। सो आप इसको यूज करिएगा रियल लाइफ में, सो यू विल डेफिनेटली
enjoy this, so I'm smitten. ठीक है, अब आपने एम की प्रैक्टिस कर ली बहुत सारी। अब आपको मैं एक चीज़ और भी कह रहा हूँ, क्योंकि सो मेनी टाइम्स अगर देखो आप आई एम पे टिक जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम, जो मैंने ड्यूरिंग द सेशंस में भी बहुत नोटिस की है, आप उन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को ज़रूर ले लिया करो जो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या आपको कहीं न कहीं गलती करवाते हैं। सो मुझे लगता है उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, उससे रिलेटेड मैक्सिमम सेंटेंस बनाए जाएँ, जैसे कि सबसे ज़्यादा गलती होती है वो है वन वाली, कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है? ये ध्यान रखना, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज़ स्लैश वाज़, ठीक है? अब इसका ध्यान रखना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अ देयर यू गो। सो द सेंटेंस इज लाइक दिस। अब मैंने इसको करके छोड़ दिया है, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है? अब एक चीज को प्लीज प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज, ना कि आर, पहली चीज। और दूसरी चीज है फ्रेंड्स आना जरूरी है। जो हमारा, मैंने मैक्सिमम जगह पे जो गलतियां देखी हैं वो यही देखी कि वन ऑफ माय फ्रेंड, ये एस लगाने वाली गलती होती है बहुत लोगों से। सो प्लीज, ये वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज स्मिटन बाय बाइक्स, वाज आ गया, इसका मतलब आपने पास्ट यूज कर ली, विद यूज किया, और प्लस आपने क्या यूज कर लिया, उन चीजों का नाम लगा दो। जैसे जतिन सर ने एक अच्छा सेंटेंस बना लिया कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज स्मिटन बाय बाइक्स, बता सकते हो कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बाइक्स, है ना? सो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है? सो समटाइम्स आप वॉज में चले जाओ, इज में आ जाओ, ठीक है? सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स या वन ऑफ माय रिलेटिव्स इज स्मिटन बाय, जैसे में हमने लगाया बाय। अच्छा, आप विद लगा के प्रैक्टिस करके देखो, मैंने विद दिया है ना आप लोगों को सेंटेंस। सो ट्राई विद प्रपोजिशन, सो आप उसके लिए भी तैयार हो जाओ कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज स्मिटन बाय डांस, और विद के साथ यूज कर लो। सो बाय, जस्ट इमेजिन करिए कि आप किसी प्लेस पे गए थे, एंड उस जगह पे आप गए, एंड you started loving that place. So you can use one of my friends is smitten by books. मैं चाह रहा हूँ आप सब लोग with preposition use करें. So one of my friends is smitten with games. One of my acquaintances is smitten with gold jewelry. Good. One of my friends is smitten with nature. Nature, uh, it's good. Uh, one of my sisters is smitten by saris. Okay. One of my friends is smitten by lipstick. Lipsticks use कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, because ये चीज़ें बहुत सारी होती हैं. So one of my friends is smitten with saris. I'm smitten with nature. Okay. जैसे लाइक यू नो, जस्ट इमेजिन करिए कि आप किसी एक प्लेस पे गए, लाइक एनी एनी हिल स्टेशन, लाइक मनाली गए, शिमला गए, या फिर आप दार्जिलिंग गए, गैंगटॉक गए, या फिर एनी प्लेस आप चूज कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट आप उस जगह पे बार बार जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? सो आपसे जब लोग पूछेंगे यार वाई ऑलवेज दैट प्लेस ओनली, जब भी जगह आपको, आप वहां जाने के लिए तैयार हो, तो आप यही बोलोगे, एक्चुअली यू नो, क्या बताऊं इस बारे में, आई एम स्मिटन, और आप बता सकते हैं बाय या विद लगा के उस प्लेस का नाम। आई एम स्मिटन विद, यू नो, उस पर्टिकुलर हिल स्टेशन, उस पर्टिकुलर कोस्टल एरिया की भी बात कर सकते हैं, जैसे सम पीपल मे बी स्मिटन बाय Goa beaches. So one of my friends was smitten with dresses. Okay. One of my friends is smitten with tea. I'm smitten with roses. Okay. Uh, it's a good use. One more minute. We'll practice on this word. And after that, आज का दूसरा word, I'm trying कि जो भी word है वो मैं 10 to 15 minutes practice करूँगा, single word. And after that, we'll move to another word. So the first word is we have already talked about. इसकी काफ़ी अच्छी practice हो चुकी है. The next word is there you go. The number second word. Also new dishes.
Smitten with bikes. Okay. The next word is lurk, not lurk. This is LURK. Smitten with sugar candy. Okay. I think you're talking about yourself, but you're making sentence. Okay. So, well, the next word we are going to talk about, and that is lurk. अच्छा, जब आप ये वर्ड यूज करें, so some people are smitten with luxury. Yes, I do agree with you, Hemant sir. So let me tell you the meaning of lurk. वैसे तो आप again time to go and search anywhere else. इसका बेसिक मतलब होता है, हिंदी में जैसे कहते हैं ना, घात लगा के बैठना. सुना होगा आपने, घात लगा के बैठना. इसका मतलब ऐसा होता है कि some people actually या तो मूव करते हैं, और ऐसे मूव करते हैं सीक्रेटली, मीन्स दे डू नॉट वांट टू बी नोटिस्ड. वो नोटिस नहीं होना चाहते, एंड कहीं ना कहीं वो छुप कर, है ना. और उनका मेन मकसद जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो जिसके लिए भी हाथ लगा के बैठे हैं उसको वो हार्म करना चाहते हैं. ठीक है. कहीं ना कहीं सीक्रेटली मूव करना भी हो सकता है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपने ही घर में कुछ चुपके चुपके जैसा काम कर रहे हो, चुप चुप के क्या काम कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो कि आपको कोई देख ना ले, और आप कुछ सर्च करने में लगे हुए हो. समटाइम्स आई डोंट नो इट हैपन्स विद यू और नॉट, बट इन मूवीज, इन सीरियल्स, इन जो भी हम लोग कहीं आसपास में देखते हैं, उनमें कभी कभी आप लोगों को इस तरीके के वर्ड्स मिल जाएंगे. तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान, बिकॉज प्लीज इसको समझिएगा कि अगर कोई इंसान कुछ ढूंढ रहा है, तो ढूंढने के लिए आपके पास ऑलरेडी 3 या 4 शब्द होने चाहिए. आई गेस शायद आप सबके पास एक वर्ड होगा, सबसे कॉमन वर्ड. जब आप कोई चीज ढूंढते हो तो उसके लिए जो सबसे कॉमन वर्ड है वो है फाइंड. सेकंड फॉर्म इज फाउंड, एंड थर्ड फॉर्म इज फाउंड. ठीक है. तो फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये वर्ड होते आते हैं जब हम ढूंढ रहे होते हैं. क्लियर. उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको, आप इस मकसद से नहीं होंगे कि आपको कोई देख ना ले. ठीक है. जब आप कोई चीज ढूंढ रहे हो और भी बड़ा स्ट्रॉन्ग करके बोलना है, तो आप सर्च करके बोल सकते हो. तो आप फाइंड वर्ड यूज कर सकते हो, आप सर्च वर्ड यूज कर सकते हो. बट वी आर टॉकिंग अबाउट लर्क. इसमें आप सीक्रेटली कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कर रहे हो जहां पे लोग आपको देख ना लें. ठीक है. सो लर्क का मतलब ये होता है, एंड इसको जब आप यूज करोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सम हाउ टू यूज दिस वर्ड. तो ये एक्शन वर्ड है. प्लीज, अब मैंने आपको क्या कहा, आपको जब वर्ड मिले तो आप उसको सबसे ज्यादा देख लो कि वो कैसे यूज होता है. तो लर्क जो वर्ड है वो ज्यादातर वर्ब की तरह आपको ज्यादा यूज दिखाई देगा. ठीक है. सो आप इसको, जो इसका मेन मतलब है वो समझ लिया आपने कि लर्क मतलब एक एक्शन हो गया, यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म भी होगी और इसकी थर्ड फॉर्म भी होगी. तो लर्क, लर्क्ड, लर्क्ड, ये इसकी 3 फॉर्म्स हो गई. जब इसकी आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनाओगे तो उसमें आईएनजी लग जाएगा, मतलब लर्किंग बन जाएगा. और जब थर्ड पर्सन की बात करोगे तो लर्क्स बन जाएगा. क्लियर ना. तो यूजुअली जब आप इस वर्ड को यूज करते हो तो ज्यादातर इस तरीके से आप यूज करोगे, बिकॉज यूजुअली आई जस्ट टेल दिस इज लर्क इन डार्कनेस. मीन्स यूजुअली क्या होता है, लोग छुप के कहाँ बैठते हैं, घात लगाने के लिए वो ऐसी जगह ढूंढेंगे ना ज्यादातर जहाँ अंधेरा होगा. तो somebody, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप कहीं पर हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई व्यक्ति ना छुप के बैठा हुआ है, और आपको ऐसा लग रहा है वो सीक्रेटली, समटाइम्स इट हैपेंस. सो somebody इज लर्किंग. ठीक है. आईएनजी लगा देना आप. somebody इज लर्किंग इन द डार्कनेस. आप ये भी बोल सकते हो. डार्कनेस के अलावा आप शेडोज वर्ड भी यूज कर सकते हो. ठीक है. शेडोज, शेडो का एक मतलब तो होता है परछाई. तो जो भी परछाई होती है वो भी है, और शेडोज का मतलब है आप अंधेरे की भी बात कर सकते हैं, तो वहां पे भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो. सो लर्क इन द शेडोज यूज कर सकते हो, लर्क इन द डार्कनेस यूज कर सकते हो. एक और वर्ड यूज होता है लर्क के साथ में, आप LUR के लर्क के साथ अराउंड वर्ड यूज कर लो. इसका मतलब हो जाता है लर्क अराउंड. मीन्स अगर आपने देख लिया, जैसे somebody इज इन योर हाउस, और वो आपको दिख रहा है, आपके भाई ब्रदर या कोई भी हो सकता है, एंड somebody इज लाइक लर्किंग अराउंड. सो वहाँ आप यूज कर सकते हो इस वर्ड को. ठीक है. सो लर्क अराउंड का ये मीनिंग निकल के आएगा, एंड इट इज अ डेफिनेटली, अगर आप
कोई भी कोई सीरीज़ देख रहे होंगे या कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई न्यूज़ देख रहे हैं और कहीं न कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में बात चल रही है, तो ऑफ़ कोर्स ये वर्ड आपको वहाँ दिमाग में ज़रूर आना चाहिए दैट समबडी इज़ लर्किंग एक्चुअली। सो वैसे तो इसको नहीं कहूँगा कि मैं आप बहुत एडवांस वाली बात है, कॉमन वर्ड है, डे टू डे लाइफ़ से रिलेटेड वर्ड है, बट आई एम टेलिंग यू समटाइम्स ऐसे शब्द जो कि हैं तो डे टू डे लाइफ़ से कनेक्टेड, बट ऑल ऑफ अ सडन हमें क्लिक नहीं करते, हमें याद ही नहीं आते कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो जस्ट आई गिव यू द वर्ड लर्क। अब आई रिक्वेस्ट कि अब आपका टाइम हो गया, नाउ इट्स योर टाइम टू मेक सम सेंटेंसेस ऑन लर्क। सो आप इसको 3 जगह से यूज़ कर सकते हो, लर्क इन द डार्कनेस, लर्क इन द शैडोज़ या लर्क अराउंड, ठीक है? लर्क की सेकंड फॉर्म इज़ लर्क्ड। सो आप पास्ट में ले जाओगे तो आप यूज़ करना है। आप बोल सकते हो आई सॉ समवन लर्किंग अराउंड हियर, ठीक है? आई सॉ समवेयर लर्किंग अराउंड। याद है ये सी वाली इंग्लिश है। सी प्लस समबडी और उसके साथ में एक्शन में या तो आईएनजी लगता है या फिर फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई सॉ समबडी लर्क अराउंड, ये भी यूज़ है। समवन इज़ लर्किंग इन द हाउस, बिल्कुल बोल सकते हो। अराउंड भी यूज़ कर सकते हो जतिन सर, सो इट वुड साउंड बेटर। अच्छा, इसका एक मतलब और भी बता देता हूँ, चलो मैं आपको इसका जो मेरा मेन था, आई एम जस्ट स्लिप्ड माय माइंड, उसको बता देता हूँ। लर्क का एक और मतलब है। एक तो हो गया एक तरह से चोरी-छुपे, इधर-उधर या किसी की घात में रहना। एक लर्क का मतलब है टू स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया। बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करना, दूसरों की प्रोफाइल खोल-खोल के देखना, उनके मैसेजेस पढ़ना। देयर आर सम पीपल, उनको बड़ा मज़ा आता है, उनको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि यार इन्होंने क्या डाला है, और अपनी तरफ से वो सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं डालेंगे। सो देयर आर मैनी पीपल जिनका मतलब आई आई रियली डोंट नो दैट सम ऑफ यू पीपल लर्क, आप सोशल मीडिया पे लर्क अराउंड करते हो या नहीं करते हो, बट देयर आर सम पीपल जो लर्क अराउंड करते हैं, जो दूसरों की जो प्रोफाइल होती है ना, उसमें बहुत झाँक-झाँक के देखते हैं। मतलब एक तरह से सीक्रेटली उसमें देखते रहते हैं कि क्या इन्होंने क्या लिखा, मतलब ट्विटर पे ऐसा हो सकता है। आप उसको कोई रिप्लाई नहीं करते, पहले ध्यान रखना। और इवन आप कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, बट आपका मेन मकसद है कि भैया इंस्टाग्राम खोलो, इंस्टाग्राम में आपको दिखाई दिया कोई भी व्यक्ति, उसकी आपकी प्रोफाइल आपको समझ में आई, आपने उसको खोल के देखा। इफ इट इज़ नॉट प्राइवेट, अगर वो पब्लिक प्रोफाइल है, सो आप उसके अंदर जाके देखो और उसके अंदर जाके देखना शुरू करो कि व्यक्ति कौन है। फिर उसके मैसेजेस में जा लो, उसके फिर कमेंट्स बॉक्स में चले जाओ और वहाँ पे देखो आप। सो दैट इज़ कॉल्ड लर्क। सो डू यू लर्क? Good evening, Anupurna ma'am. So let me I saw someone lurking around. Someone is lurking around in the classroom. He was lurking in house, in HOS sister's home, in his sister's room. Okay, my friend is lurking around in the house. Kohli, Tarak Mehta ka ulta chashma is lurking in the kitchen. Okay, Simi ma'am, I think you enjoy watching Tarak Mehta ka chashma. Ranjana ma'am has removed the message, and I saw someone lurking in the darkness. Okay, someone is lurking around behind the house. Looking around behind the house. Okay, no, I don't lurk. बाकी मैंने आपको बताया अभी, जैसे आप सोशल मीडिया वाला लर्क जो वर्ड है उसको यूज़ करके देखो कि अच्छा, अब आपको सेम स्ट्रक्चर यूज़ करना हो वन ऑफ माय फ्रेंड्स के साथ में, तो कौन-सा वाला रूल हो जाएगा? ठीक है? प्लीज़ जो हम लोगों ने पहले शुरू किया था, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाला, तो वही अब आप यूज़ करके देखना कि अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो ऐसा करती है या करता है, उसके बारे में बताना। तो बस एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, पहला जब हमने वर्ड यूज़ किया है स्मीटन, इट वाज़ नॉट एन एक्शन, वो एक्शन नहीं था, वो वर्ब नहीं था। बट अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो अब इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा दैट अब एक्शन नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास सॉरी एक्शन है और हम प्रेज़ेंट टेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की भी नहीं बात कर रहे। समबडी लर्क्स अराउंड द गार्डन नहीं, सुधीर सर ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि जब आप आई सॉ लगा चुके हो तो लर्क्स नहीं हो सकता फिर।
आई सॉ समबडी लर्क अराउंड द गार्डन, या फिर लर्किंग अराउंड द गार्डन। अब अगर आप ये बोलोगे आई सॉ समबडी लर्क, तो उसका मतलब आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखा आपने। और अगर आपने कहीं बीच में देखा है तो फिर आईएनजी लगाओ। सो थीफ लर्क्स अराउंड इन द शेडोज, या गुड कबीरा मैम, ये आप बना सकते हो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज लर्किंग बाय माई फोन। बाकी मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा था कि आपको प्रैक्टिस क्या करनी है कि वन ऑफ माई फ्रेंड लर्क्स, सो LURKS हो जाएगा, इसमें इज मत लगाना बस, ये दैट्स वेरी नाइस। So one of my friends lurks around on social media. So you can speak like this. So okay. So आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ओके, इसका क्वेश्चन क्या होगा? अगर आपको ये पूछना हो किसी से कि क्या आपका कोई दोस्त लर्क अराउंड करता है, क्या आपका कोई दोस्त ऐसा करता है, तो सेंटेंस का जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? Now it's time to practice questions, because हम लोग sentences बहुत बना लेते हैं, questions को हम लोग छोड़ देते हैं। I think they are as even more important than the sentences, because I have noticed many people find it difficult to make questions. Sentences बन जाते हैं, और स्पेशली affirmative sentences बहुत आसानी से बना लेते हैं जो पॉजिटिव sentences होते हैं। One of my friends was lurks, नहीं पूजा मैम, सेंटेंस गलत हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अगर पास्ट में अगर वॉज लगाओगे तो आईएनजी लगेगा, वॉज लर्किंग अराउंड माई रूम। और अगर आपने ऐसा किया, उसने किया था, तो इसका मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स लर्क्ड अराउंड माई रूम। आई सॉ समवन समबडी लर्क्स, दिव्यांशु मैम गलत हो गया सेंटेंस, लर्क्स नहीं होगा। आई सॉ समवन लर्क अराउंड द रोड, frauds are lurking around our bank balance. Oh my god. Does any of your friend lurk around on social media? Yes, that's good, Priya ma'am. Nice sentence. But इसमें एक गलती हो गई, और वो गलती हो गई जो मैं जिसको मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट करके बोला था कि ज़्यादातर हमारे साथ दिक्कत क्या होगी, हम जो ये वाला ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो इसमें एस लगाना भूल जाएंगे। सो डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, एस लगेगा वहां पे, ये मस्ट है। डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स lurk around on social media? One of my colleagues lurked around in the boss cabin. Is it right? Yes, it is absolutely right. अगर आप past की बात करेंगे, does your any friend? So these are, does any of your friends? Does any of your friends? क्योंकि अगर आप any नहीं लगा रहे तो फिर सही है। Does your friend lurk around? क्या आपका दोस्त ऐसा करता है या करती है? आप यहाँ सिंपल सिंपल बात करें आपके दोस्त के बारे में, बट क्योंकि मैं ग्रुप में से निकाल के इस प्रैक्टिस के सेंटेंस बना रहा कि डज एनी, हेमंत सर सेम मिस्टेक, डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, योर है ना जतिन सर, योर होगा, यू नहीं। डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स लर्क अराउंड द हाउस? डज योर एनी फ्रेंड, तो हेमंत सर आपको भी वही सही करना है कि डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स lurk around. Do you lurk around in this someone's phone? Okay. देखो ऐसा बना दिया मैम ने, मैंने कहा नो मैम आई डोंट, बिकॉज it's absolutely not good of me. Everyone has their personal life. Does any of your friends lurk around your room? Does any of your friends lurk around your phone? So ऐसा आप कर सकते हो, यानी वन ऑफ माई फ्रेंड्स लर्क्स, रंजना मैम फिर हो जाएगा, एस लगेगा इसमें। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लर्क्स अराउंड, सो ऑन सोशल मीडिया। एक्चुअली वो आप सोशल मीडिया की बात करो, है ना, ऑन फोन्स नहीं है, ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में बात चल रही है। ऑन व्हाट्सएप हो सकता है, व्हाट्सएप में दूसरों के स्टेटस को जाके देखना शुरू कर दो। बट अगर आप ये काम सीक्रेटली कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। Does your friend lurk around the road? Does your any friend? Does your any friend? Does any of your friends lurk around the road?
Does any of your friends lurk around the road? You need more practice, you need to be more focused, guys. तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको एक बार में यूं ही पकड़ना पड़ेगा कि सर, does any of your friends lurk on social media? And usually like मैं WhatsApp को छोड़ देता हूँ फिर भी, because it doesn't happen much on that. So one of my friends was lurk around on social media. was नहीं आएगा जतिन सर इसमें, वॉज लगेगा। अगर आप लगाना चाहते हो तो उसमें आईएनजी हो जाएगा, और ये आप दिखाना चाहते हैं कि वो जो भी दोस्त हैं आपके, मेल या फीमेल, वो ऐसा कर रही थी, ऐसा कर रहा था, मतलब आप उनके साथ में काम जारी हो जाएगा आईएनजी अगर लग गया। और ये काम अगर आप को पूरा करते हुए देख लिया आपने, उन्होंने पूरा किया था ऐसा काम, तो आप सेकंड फॉर्म लगाना कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स लर्क्ड अराउंड on social media. Does any of your friends lurk around the room? Yeah, so now this is right. So एब्सोल्युटली राइट, आप सब लोगों का सही है। अब कुछ और बात करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड, लेट मी टॉक अबाउट, डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स लर्क अराउंड योर फोन पासवर्ड? सो द नेक्स्ट वर्ड मस्ट, आप सब लोग इसको जरूर पकड़ना। इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड बट इट हैज नेगेटिव मीनिंग। ठीक है, रोजमर्रा का वर्ड तो है बट दिमाग में आता नहीं है। जैसे हिंदी में अगर मैं कहूँ तो जिसे फिसड्डी कहते हैं, उसको इंग्लिश में लेगर्ड कहते हैं। LA, स्पेलिंग का ध्यान रखना, इसमें ई नहीं है, ए है, LAGGARD। सो लेगर्ड। सो जब आप लेगर्ड बोलते हैं किसी को, अब मैं आपको पहली दो तीन चीजें, अभी भागने की कोशिश मत करिएगा ना, जल्दबाजी ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट, समझिएगा। डू यू लर्क अराउंड योर सिबलिंग्स फोन? डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स? अभी लेगर्ड पे बात करते हैं, अभी लर्क को छोड़ देते हैं। सो लेगर्ड की बात करते हैं। लेगर्ड नॉन एक्शन है, बट ये क्या है? ये नाउन है। मैंने फिर से रिपीट करना है, ये कंडीशन का वर्ड नहीं है, ये क्वालिटी का वर्ड नहीं है, इट्स अ नाउन। और वो भी इंग्लिश में जो कहते हैं ना, वो भी इसको कहते हैं दैट टू काउंटेबल नाउन है। सो ये काउंटेबल है, इसका मतलब है कि जब आप लेगर्ड को सिंगल यूज करोगे, ठीक है, सो आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए? मैं बना के बता देता हूँ अपने लिए सेंटेंस। आई एम, क्योंकि मैं नहीं हूं इस तरह से, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँ, आई एम नॉट अ लेगर्ड। सो इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि भैया मैं फिसड्डी नहीं हूँ। आई एम नॉट, आई यूज टू लर्क अराउंड गेटिंग टीवी रिमोट फ्रॉम माई सिबलिंग्स। नहीं, लर्क अराउंड, अच्छा, चोरी चोरी चुपके चुपके ऐसे ऐसे करते थे। ओके, दैट वन गुड सेंटेंस। सो लेगर्ड पे आ जाते हैं हम लोग, लेगर्ड के ऊपर। सो आई एम जस्ट सेइंग आई एम नॉट अ लेगर्ड। मैंने लेगर्ड से पहले यूज किया है, तो आप सबसे भी मेरी यही विनती रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जब आप स्मीटन वर्ड यूज कर रहे हो तो उसके आगे अ मत लगा देना कि आई एम अ स्मीटन, नो, वो एडजेक्टिव है। क्लियर? ये नाउन है, और वो भी दैट टू काउंटेबल नाउन। सो काउंटेबल नाउन आप यूज कर रहे हो तो सिंगल के लिए तो लेगर्ड यूज होगा। और जब आपको एक से ज्यादा दिखाना हो, जैसे आपने कहा सर, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, अब एक की बात नहीं है, आपके कुछ होंगे दोस्त ऐसे हैं, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर लेगर्ड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर लेगर्ड्स। सो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब किसी एक के बारे में बात कर रहे हो तो अ यूज कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो और आप क्या बात कर रहे हो, ऑफ कोर्स एक से ज्यादा लोग हैं तो लेगर्ड्स यूज करोगे। अब आपको ये भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि जब आप इनको प्रेजेंट में यूज कर रहे हो तो आपके टाइम वर्ड कौन है? इज, एम, आर है। और पास्ट में जब यूज करोगे तो वॉज वर यूज करोगे, वॉज एंड वर यूज करोगे। तो वॉज एंड वर का मतलब क्या होगा? वॉज वर पास्ट में चले जाओगे। आप सोचो अपने बारे में कि आई वॉज अ लगर्ड, आई वॉज अ लगर्ड, यानी कि मैं फिसड्डी था। एक सेंटेंस, आई यूज टू बी अ लगर्ड। अब आपको मैं जो कहना चाहता हूँ, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आफ्टर डे आफ्टर टुमारो के बाद से जितने भी हमारे सेशंस होंगे, जो स्पेशली इसी तरह से रहने वाले हैं, नॉर्मली मैं पहले आपको बता दूं, उसमें प्योरली प्रैक्टिस है।
और प्योरली प्रैक्टिस, किसी वर्ड को लेकर हम लोग बात करेंगे, किसी कुछ अच्छे एक्सप्रेशंस को लेकर हम लोग बात करेंगे, और उसके अंदर हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम वर्ड्स चाहिए। सो डिफरेंट टाइम वर्ड्स, जैसे अभी आपकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये ध्यान रखिएगा कि ये जो तरीके हैं, दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स। और मैं ये तो मैं कह सकता हूँ कि राइट नाउ इट इज नॉट हैपनिंग अराउंड, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इस समय यूट्यूब पे बैठा हुआ है, या किसी कोचिंग के अंदर भी मेरे ख्याल से शायद वो लोग पेपर जरूर दे देते होंगे बच्चों को कि इसको सॉल्व कर लो, एंड देन विल चेक इट आउट। सो आई डोंट नो कि लाइव उसी टाइम पे आपके साथ ऐसा हो रहा नहीं होता। सो यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ ये जो एक अवसर है हम सबके बारे में, बिकॉज अभी मुझे खुद को भी नहीं पता, बिकॉज वंस आई आई विल बी ऑन माई जर्नी। सो उसके बाद मेरे को हो सकता है कि 10-15 डेज के लिए थोड़ा सा आई मे नॉट फाइंड आउट दैट मच टाइम टू बी एक्टिव, बिकॉज जैसे मेरी बुकिंग्स हो रही हैं टैटूज की, quite packed up with my schedule, so I think you may have seen my thing ki I just said ki there are only 5 slots left, and one of my like acquaintances asked me ki done, कि चलो खत्म करते हैं। सो आई जस्ट वांट टू से दैट यस, कि जब मौका मिले उसका पूरा फायदा उठा लो। सो मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जब भी आपको मिल रही हो, अवसर मिल रहे हो, उसको ले लो, बिकॉज एक बहुत अच्छी इंग्लिश में कहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, दे नॉक साइलेंटली, बहुत धीरे से नॉक करती हैं। एंड समटाइम्स हम में से बहुत लोगों का एक एटीट्यूड हो चुका है, जो होता है कि अभी तो टाइम है, हम लोग कर लेंगे, भविष्य में कर लेंगे। भविष्य में बहुत डिफरेंस है। सो आई एम नॉट अ लैगर्ड, बट सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर लैगर्ड्स, ठीक है, एंड डू नॉट बिहेव लाइक अ लैगर्ड। ठीक है, आप बोल सकते हो डू नॉट बिहेव लाइक अ लैगर्ड। बाकी सब लोग जागो, वेकी वेकी, जो other people are there and still not. So my अन्नपूर्णा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स अन्नपूर्णा मैम, वन ऑफ माई, दो गलतियां अभी आपको मैं अभी लाइव लाइव में बता सकता हूँ कि आपकी सेंटेंस में दो गलतियां हैं, उन दोनों को चेक कर लो। पहला, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसमें एस नहीं है, ये पहली गलती। दूसरी, लेगर्ड वर्ड मैंने कहा आपको, ऊपर भी मैंने इसको ही कहा था कि आपको लेगर्ड को जब सिंगुलर की तरह यूज करना है तो आप उसको आ लगाओगे, ठीक है। सो ये करना पड़ेगा आपको। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ लेगर्ड, डोंट बी अ लेगर्ड। जतिन सर, आपके सेंटेंस में भी आ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये कहोगे सर इसका लगाना जरूरी है, मैंने क्या बात की है, मैंने यही तो कह रहा हूँ इतनी देर से। इट इज इंपॉर्टेंट कि सेकंड्स में देखो कि आप जस्ट यू राइट समथिंग एंड यू गेट द आंसर। इसलिए मैं आप सबसे भी कहूंगा, प्लीज डू नॉट हरी अप, हमें यहाँ पे कोई फर्स्ट सेकंड नहीं आना है, ठीक है, हमें सोचना है। और दूसरी बात, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आई डोंट नो दैट कि आप दूसरे लोगों के मैसेजेस देखते हैं या नहीं देखते, कि उन्होंने क्या लिखा है। आप अपने आप को देखो, आपने वर्ड को सही समझा नहीं समझा, आपने उसका सही सेंटेंस बनाया, खुद से बनाया नहीं बनाया। आस्क योर सेल्फ प्लीज, ट्रू, आप सबसे यही कहूंगा, बी ट्रू टू योर सेल्फ। दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है। राइट नाउ इफ आई वर एट योर प्लेस, आई वुड मेक माई ओन सेंटेंसेस। मेरे को यहाँ पे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, पहली चीज मुझे समझना है, उसको सही तरीके से यूज करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ माई कलीग्स इज अ लैगर्ड, आई एम नॉट। रंजना मैम, आपका भी सेंटेंस ये हो गया, आ नहीं यूज किया आपने। आई एम नॉट अ लगर्ड बट सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर, इसमें फिर आर आएगा। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर लेगर्ड्स, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज लेगर्ड, ठीक है, पास्ट में। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ, प्रिया मैम, आपके सेंटेंस में दो गलतियां हैं, आपने आ भी लगा दिया और लेगर्ड्स भी लगा दिया, तो लेगर्ड्स नहीं हो सकता ना। सो लेगर्ड्स में एस हट जाएगा। अ पर्सन शुडंट बी अ लेगर्ड, याशी मैम, इसमें आ लगेगा। अ पर्सन शुडंट बी अ लेगर्ड वॉज, one of my friends is a laggard. Yes, Annapurna ma'am, now your sentence is right. One of my relatives is a laggard. Don't be a laggard. One of my cousins is a laggard. Yes, I'm not a laggard, but one of my neighbors was laggards. Ranjana ma'am, sentence गलत हो गया. I ain't a laggard.
एंट की प्रैक्टिस कर ली आपने, बहुत अच्छी बात है। बट मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ, मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ, मैं कभी भी व्हेनेवर आई स्पीक इंग्लिश, आई राइट इंग्लिश, आई नेवर use ain't word. I know the meaning of ain't word, but I do not use ain't word because it is, जब मैंने ain't की परिभाषा आप लोगों को बताई थी, तो मैंने ये कहा था आपसे कि ain't जो शब्द है वो एब्सोल्युटली जो ग्रामेरियंस हैं, जो इवन कंपटीशन में भी अगर आप बात करेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सिर्फ इसको आप चेक कर सकते हो, मीनिंग यूज कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस भी कर लो, बट अगर आप अपने रियल लाइफ में यूज कर रहे हो तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस वर्ड। शी इज अ लेगर्ड, यस, गुड। तो आप ये सेंटेंस बना लो, शी इज नॉट अ लेगर्ड, वेरी नाइस। And he is a laggard, but person should he is a laggard, but a person shouldn't be a laggard. If you work hard, then you don't be a laggard anymore. यहाँ डोंट बी नहीं होगा। जितिन सर, आपका सेंटेंस बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की आपने, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस, दैट कि आप ट्राई कर रहे हो इसके लिए, एंड इट्स गुड। जब हम कुछ नया ट्राई करेंगे गलतियां भी होंगी हमसे, एंड दैट आई शुड से यू शुडंट वरी अबाउट। आप लोग चिंता ना करें इस बारे में। इफ यू वर्क हार्ड देन यू वॉन्ट बी, भविष्य होगा कि यू विल नॉट बी, है ना। सो यू वॉन्ट बी अ लेगड एनीमोर। सो यहाँ डोंट ना यूज करके आप वॉन्ट यूज करो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ लेगड, ठीक है, इज शी अ लेगड, वेरी नाइस सेंटेंस। ये हम में से बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चंस बनाने की आदत है हम लोगों को वो बहुत कम है, ठीक है। जैसे अभी तक, अभी आपने कुछ लोगों ने मेरे साथ टैग क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस कर ली, अभी तक आपका कोई भी सेंटेंस टैग क्वेश्चंस में नहीं आया है, ठीक है। तो आपने अभी तक कोई भी टैग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की। जबको आपको लगता है कि आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कर लेता कि या कोई भी एक नाम ले लो अपने किसी फ्रेंड का, और आपको जब लगता ही है उसके बारे में याद करने के लिए रहेगा। सो आपने क्या बोला, आर दे लगर्स, या सुधीर सर, वेरी नाइस, आर दे के साथ में भी प्रैक्टिस कर लिया आपने। वन ऑफ माई acquaintances फाइंड्स मी अ लगर्ड, बोल सकते हो, बिल्कुल सही, गुड सेंटेंस। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, सॉरी, वन ऑफ माई acquaintances finds me a laggard. She's a laggard, isn't she? Good sentence. इसका नेगेटिव भी प्रैक्टिस कर लो। शी इज नॉट अ laggard, is she? One of my friends is a laggard, isn't he? Good. Uh, आपका एक दोस्त, he is a laggard, isn't he? Hmm. Good sentence. He is a laggard. यशी मैम, नहीं उसमें, बस isn't he? He is a laggard. अन्नपूर्णा मैम, he is a laggard, isn't he? He is a laggard, isn't he? He is a laggard, isn't he? आप फिसड्डी थे ना, आप फिसड्डी थे ना का टैग क्या बनेगा? आप फिसड्डी थे ना, आप मंद बुद्धि थे ना। लगर्ड का मतलब कई बार ऐसे भी बोलते हैं, मंद बुद्धि मतलब पीछे रह जाता है ना बेचारा। सो आई सेड योर्स, वन ऑफ योर फ्रेंड्स, या गॉट इट। ही इज अ लगर्ड, इजंट ही? ही इज अ लगर्ड, इजंट ही? या आप फिसड्डी थे ना। You were a laggard, weren't you? Good, Simi मैम, थैंक यू। प्रिया मैम, आपका सेंटेंस भी ठीक है, बट उसमें आर्टिकल गायब है बस। My cousin is not a laggard, is he? अच्छा है। पप्पू, पप्पू, got it. You got the real Pappu. Pappu is a laggard, isn't he? Yes, he is. You were a laggard, weren't Sudhir sir? गलती क्या हो गई? weren't you? पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव बनेगा। So you were a laggard, weren't you? You were a laggard, weren't you? You are, पूजा मैम, are, लेकिन जब पास्ट में जाओगे तो, क्योंकि आर तो प्रेजेंट हो जाएगा, और प्रेजेंट का मतलब है आप सामने वाले को अभी बोल रहे हो कि आप लगर्ड हो ना,
और आप लेगर्ड थे ना, तो शी इज अ लेगर्ड, शी। जैसे आज की क्लास में हो सकता है मैं बोलूँगा दिव्यांशी मैम के नहीं आ रहे, तो इसका मतलब दिव्यांशी मैम इज़ अ लगर्ट, isn't she? So you are, oh, maybe I think she is not there present right now. Maybe some of you are not there. So आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों के मुझे अभी रिप्लाईज, या आप लोग जो पार्टिसिपेट नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है यू आर अ लगर्ट, आरंट यू? ना फिसड्डी हो, आप पीछे रह जाते हो लोगों से, बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे पीछे अपनी कॉपी में, या मे बी आई थिंक आप बहुत और भी अच्छे स्मार्ट गाइज हैं। सो आपने ये ले लिया और आपने अपनी कॉपी ले ली, अगर आप यहाँ टाइप नहीं कर रहे, सो आपके साथ ये काम अच्छा हो सकता है। मैं आपको वैसे दे सकता हूँ एडवाइस कि अगर आप लोग यहाँ पे लाइव चैट में नहीं आते, देखो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे आपको कौन करेक्ट करेगा या नहीं करेगा, या चांसेस होंगे नहीं होंगे, बट एटलीस्ट मैं आपको ये एक एडवाइस दे सकता हूँ कि आप अपना पेन और कॉपी जरूर रखिए, और जितने सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं यहाँ पे, जितने सारे सेंटेंसेस बने हैं वो सारे एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के लिए, लाइव एग्जाम्पल्स हैं। तो आप किसी का भी उठा लो कि माई सर इज नॉट अ लैगर्ड, इज ही? यू वर नॉट अ लैगर्ड, वर यू? You were a laggard, weren't you? No, sir, I'm not a laggard. ठीक है, you were a laggard. Mm, so I can say, so you were laggard. So, anyways, good way. Mm, the next word, the fourth word for the day, it's इस वर्ड को पकड़ लो। इसको पहली बात, इसका जो जब आप इसे प्रोनाउंस करें तो ध्यान रखना, इसको सिडल मत बोलना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है साइडल, ठीक है? साइडल यानी कि एक्चुअली इसका जो मेन मीनिंग है वो है किसी इंसान की तरफ जाना या किसी इंसान से दूर जाना, इसके दोनों मतलब हो सकते हैं। मतलब मूव अवे फ्रॉम समबडी और गो टुवर्ड्स समबडी। सो टू गो या टू वॉक टुवर्ड्स समबडी, तो किसी इंसान की तरफ जाना या किसी इंसान से दूर चले जाना, या फिर कभी कभी ऐसे किसी के बगल से गुजर जाना कि आप शायद ये माने कि उसने आपको नोटिस ही नहीं किया, या फिर आप किसी के बगल से निकल जाओ, कुछ इस तरीके से निकल जाओ कि आप ये एहसास करवा दो उस इंसान को कि जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं है। मतलब आप किसी के बगल से गुजरे और आप जानते हो कि वो आपको जानते हैं व्यक्ति, समटाइम्स इट रियली हैपेंस, और स्कूल कॉलेजेस में तो बहुत होता है। समटाइम्स टीचर से गुजरते हैं और हम ऐसे निकल जाते हैं बगल से, हम कुछ नहीं करते ना, निकल के जैसे हमें ऐसा लगता है कि हम ये मान के चल रहे थे हमें किसी ने नहीं देखा, ठीक है? ऐसे गुजर जाना कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमें किसी ने नहीं देखा। सो ये साइडल का मीनिंग होता है। अदरवाइज मैंने कहा कि किसी इंसान की तरफ, किसी की तरफ जाने को भी मतलब वॉक टुवर्ड्स समबडी, और या फिर वॉक किसी से दूर हो जाना, ठीक है? सो अवे फ्रॉम समबडी, सो वॉक अवे फ्रॉम समबडी या वॉक टुवर्ड्स समबडी को भी साइडल कहते हैं। ये वर्ब है, ये एक्शन है, यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म भी है और इसकी थर्ड फॉर्म भी बनेगी। तो साइडल, साइडल्ड, साइडल्ड। अच्छा, जब इस वर्ब को आप यूज करें तो दो चीजों का बड़ा ध्यान रखना। जब आप साइडल वर्ड यूज करें, जस्ट चेक आउट योर सेंटेंसेस, गुड। अब साइडल वर्ड डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो साइडल को जब आप यूज करें तो दो चीजें जरूर याद करना। वो है, एक, जब आप साइडल वर्ड यूज करें तो साइडल ओवर टू समवन यूज करना, मतलब जब आप किसी की तरफ जाए, ठीक है? साइडल ओवर टू, यू नो, दैट यू शुड यूज साइडल ओवर टू समवन, यानी कि जब आप किसी की तरफ जाएंगे। ओवर का मतलब ट्रांसलेशन मत करना कि ऊपर से हो जाता है। कई बार ओवर जो यूज करते हैं हम लोग वर्ड, ये बहुत खूबसूरत इंग्लिश दिखाता है। जैसे कई बार आप गो के साथ भी ओवर वर्ड यूज कर सकते हो, कहीं जाने को गो ओवर करते हैं, बट सम टाइम पीपल यूज गो ओवर देयर। गो देयर इज ऑल्सो राइट, एंड पीपल से समटाइम्स गो ओवर देयर। सो ये आपके जो शब्द होते हैं, जो आपके बोलने का अंदाज होता है, उसको थोड़ा निखार देता है।
सो ये हर किसी वर्ड के साथ यूज़ नहीं कर सकते। सो व्हेन यू रीड समथिंग, और जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगे, आप नॉवेल्स रीड कर रहे हो, मैगज़ीन्स पढ़ रहे हो, तो आपको इन चीज़ों का एग्ज़ाम मिलेगा और फिर आप इनको चेक करिए। जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि लुक, आई एम नॉट द वन हू क्रिएटेड इंग्लिश। तो मैंने इंग्लिश, एक्चुअली मुझे पढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। सो द वन आई जस्ट वांट टू से कि मैंने अपने आप को ज़रूर बहुत बहुत अच्छा टाइम दिया। 2-3 साल मैंने अपने साथ बहुत अच्छे इंग्लिश को दिए हैं। 2-3 साल की बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट 1, 2 और 3 मंथ्स। सो इफ यू वांट टू बी वेरी गुड एट समथिंग, स्पेशली मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की वोकैब्युलरी आप बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंग्लिश की आप ग्रामर जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़, इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, या वो मेरे को दूसरी कहावत ये आएगी कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। सो ये हथेली वाले पे नहीं होगी, सरसों नहीं उगेगी यहाँ पे, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड आई थिंक daily sometime, if you were a laggard, weren't you, Divyanshi ma'am? Now you are there. I think you were offline, I guess. So जब भी आपका काफ़ी टाइम के बाद मुझे मैसेज मिला है, मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है। एनीवेज़, मैं जो बात कर रहा था उसकी बात कर लेते हैं। तो जब आप साइडल वर्ड यूज़ करते हो, तो आप इस तरीके से यूज़ करना। तो साइडल ओवर टू समबडी या समवन आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जब आप कभी किसी के बगल से गुज़रने के लिए बात करें, तो साइडल के साथ पास्ट वर्ड ज़रूर यूज़ करना। साइडल पास्ट समबडी या फिर समवन। इसकी जगह आप उस किसी इंसान का नाम रख सकते हो कि यस्टरडे ही साइडल्ड पास्ट मी। तो अगर मैंने ये सेंटेंस बनाया, ही साइडल्ड पास्ट मी, तो इसका ये मतलब हो गया कि भैया वो मेरे बगल से गुज़र गया, ठीक है? क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, अगर मैं शी बोलता तो इसका मतलब मैं फीमेल के बारे में बता रहा होता। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बगल से गुज़र गए और उन्होंने बिल्कुल देखा ही नहीं मेरी तरफ। सो बिकॉज़ आई डोंट हैव डाटा, आई begged for hotspot from my brother. Oh, really, I do feel for you, and I really, hats off to you. Uh, so आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो, आई begged my brother for the hotspot. Clear? So I really, I feel your, uh, I see your sincerity. So that's really great. Keep it up. वेल, सो आई वाज़ टॉकिंग अबाउट साइडल। तो हम साइडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइडल के बारे में बात चल रही थी। तो आप कैसे यूज़ कर लेंगे, आप उन चीज़ों को देख सकते हो, और आप इट्स ऑफ कोर्स डे टू डे लाइफ में देखोगे तो आपको सिचुएशंस मिल जाएँगी, आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि यूजुअली पीपल डोंट यूज़ दिस वर्ड। सो पीपल डोंट यूज़, बट यू से जो कहूँगा वो ये है कि स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड। जब भी आपको ये दिखाई दे, आप बिल्कुल ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। सो अच्छा, इसका ये भी मतलब है कि आप जब किसी की तरफ आते हो, तो आपका मेन मकसद भी है, या किसी की तरह से दूर जाते हो, तो आप ये चाहते भी हो कि आपको यूजुअली नोटिस ना किया जाए। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो आप जब इस वर्ड को यूज़ करें, सो चेक कि आप इस तरीके से इस वर्ड को ज़रूर यूज़ कर रहे हो। क्लियर? So now let's make some sentences. I'm waiting for you guys now. Yeah, go ahead. Now I'm waiting for your replies. Let me have some water. I settled over to my relatives. मतलब उनके पास गए. Hmm. Yeah, sometimes it happens, like मैं आपको बताता हूँ. He settled over to someone. हाँ, जैसे हो सकता है आपको एक सेंटेंस ऐसे बनाना हो कि you know he settled over to a young lady. जैसे कल मान लो it was Valentine's Day, and बहुत लोगों का जो होता है ना, वन साइडेड लव होता है, तो
समटाइम्स व्हेन पीपल गो टू प्रपोज समवन, सो इट हैपेंस समटाइम्स कि वो वहाँ पे आप इसको सबसे अच्छा यूज़ कर सकते हो। आप क्लब में यूज़ कर सकते हो, कहीं पे जो लोग क्लबिंग करते हैं, उन्हें पता होगा कि वहाँ पे लोग किसी के पास जाते हैं एंड दे से समथिंग। सो आप बोल सकते हो कि ही वहाँ पे गए एंड आस्क्ड फॉर सम शी टू मी, I sidle over to my neighbor. Is this uh, mm, usually आप बना तो सकते हो दिव्यांशु मैम, योर सेंटेंस इज राइट, फाइन, बट उसके साथ में अगर आप आंसर देंगे तो भी ये हो सकता है शी साइडल ओवर टू मी। शी पूजा मैम, जो साइडल वर्ड यूज किया है आपने, या तो सेकंड फॉर्म में जाएगा पास्ट में कि शी साइडल्ड ओवर टू मी, और अगर ये प्रेजेंट ही होगा तो शी साइडल्स ओवर टू मी। He sidled over to my friends. Okay, I sidled over to my friends. My mom sidled up to me. सानिध्य सर, या तो up लगा लो या over लगा लो. Usually my mom sidled over to me. Other people, I think you're finding it out. I sidled over to my dad. Good. Again, Kabira ma'am. आप इसके बाद में एक सेंटेंस बना सकते हो। देखो मैं आपको ऐड करता हूँ कि I sidled over to my dad and asked him for the permission to go for a picnic. I sidled over to my friends and told them something. My friend sidled over to me and slapped me. I sidled over to Mahima. Okay, I sidled over to my friend. She sidled over to my cousins. A thief. The thief sidled past a वॉचमैन। वॉचमैन जब सुधीर सर स्पेलिंग लिखेंगे तो ये पूरा एक ही वर्ड होगा, वॉचमैन, ना कि दो शब्द होंगे, है ना। तो WATCHMAN, sidled past a watchman. Yes, I sidled over to my mom for taking permission for night out. Whenever I see Karela at the dining table, I sidle past my mother and flee away. That's good. That's wonderful. I give you a very good, a very impressive sentence. So Hemant sir, this is for you. मजा आया इसको पढ़ने के बाद. There are some very good sentences, So you deserve a good sentence. She sidled past away from me, but she was not talked with me. But she did not talk. She did not talk with me. I think she wanted to ignore me. तो देखिए पास्ट की बात होगी तो इसमें पहला तो वॉज नहीं आएगा, दूसरा वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड हो जाएगा। अन्नपूर्णा मैम, ठीक है। सो बस आपका सेंटेंस बहुत अच्छा है, आपने ट्राई किया लंबा सेंटेंस बनाने के लिए, दैट इज वेरी नाइस। पापा साइडल ओवर टू मी एंड माय ब्रदर, ओके, एंड व्हाट डिड ही डू, याशी मैम, आफ्टर दैट व्हेन ही साइडल्ड ओवर टू यू? I sidled over to my brother and asked to bring some chocolate. Good. He sidled over to his friends. Hmm. He sidled over to his friends. Okay. I sidled over my dad, and I asked him for permission. Permission किस काम के लिए? To go for, और shopping से पहले आ नहीं आएगा. To go for shopping. She was trying to sidle past me. She was trying means she couldn't.
She was trying. Yeah, the next sentence should be like, Priya ma'am should be like, she was trying to sidle past me, but I looked at her and asked, "Why are you sidling past me without saying hello to me?" He sidled over to his mom. Hmm. Hmm. Thank you so much, sir. Ah, my dad sidled over to me and he asked to study. And he asked to study नहीं होगा सानिध्य सर. He asked me to study. क्योंकि ग्रामर का एक नियम है जिसमें आस्क के बाद टू कभी नहीं लगा सकते आप, ठीक है. तो आस्क जिससे कहा जाता है काम करने के लिए, उस इंसान को आस्क एंड टू के बीच में लगाना मस्ट है इंग्लिश में. डायरेक्टली आस्क टू नहीं हो सकता है. सो माय डैड साइडल्ड ओवर टू मी एंड ही, तो चुपके से आया आपके पास, चुपके चुपके से आया आपके पास, चुपके आया आपके पास. और उन्होंने कहा, पढ़ ले बेटा, नहीं तो मम्मी देख लेगी तू वीडियो गेम खेल रहा है. सो ही साइडल माय डैड साइडल्ड ओवर टू मी एंड आस्क्ड मी टू स्टडी. सो गुड. And yeah, it's time to go for another word. The last one for today. So आज का जो लास्ट वर्ड है वो मैं आपको बता दूं. It's a he sidled over to his mom to get new clothes. The last word, let me tell you guys. The word is oh, yes, sir. I played game on my laptop. Oh, my dad sidled over to me and asked me for shopping. I sidled past away from her. Then she noticed. When I looked back, I saw someone's beautiful smile. Is that right? Yeah, it's good, Jatin sir. Nice sentence. Good. As it was true from her, then she noticed. But so the next sentence is this. There's a word, again, it's a verb. ये एक्शन है. LAG, लैग. और इसी से लैगर्ड बनता है, ठीक है. अब लैगर्ड तो नाउन हो गया, वो तो एक किसी इंसान को आप बोलोगे. लेकिन जो एक्शन यूज करोगे आप, ठीक है, लैग का मतलब इसके साथ में यूजुअली बिहाइंड वर्ड यूज होता है. लैग बिहाइंड, ठीक है. और लेग, अच्छा, ऐसा मतलब जरूरी नहीं कि हर जगह बिहाइंड ही यूज करोगे. टू के बाद सुधीर सर फर्स्ट फॉर्म लगेगी. माई फ्रेंड ट्राइड टू साइडल ओवर टू मी एंड आई सॉ हिम. नहीं तो आप ही की तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा सा अलग होगा. अगर वो आप ये करोगे तो माई फ्रेंड ट्राई टू साइडल पास्ट मी, तो इसका ये मतलब है वो आपकी तरफ नहीं आ रहा था, आपसे आपसे कहीं बगल से गुजर रहे होंगे चुपके से. तो फिर आप कह सकते हो आई सॉ हिम, बट आई सॉ हिम, है ना. ही वाज ट्राइंग टू. तो सेंटेंस मेरे को लगता है ज्यादा एक्यूरेट होगा कि माय फ्रेंड वाज ट्राइंग टू साइडल पास्ट मी बट आई सॉ हिम. Clear. So I used to sidle over to my landlord when I don't pay rent. साइडल ओवर टू का मतलब है आप उसके पास जाते हो चोरी चुपके से, ठीक है. बट अगर आप उसको नजरअंदाज करके जा रहे हो तो आप साइडल पास्ट कर रहे हो, ठीक है. यू आर नॉट साइडलिंग ओवर. मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद सही नहीं समझ में आया उसका मीनिंग. लेग बिहाइंड की बात कर लेते हैं आप. लेग बिहाइंड, इसका मतलब लैगर्ड मैंने आपको बता दिया कि वो तो इंसान कहलाएगा फिसड्डी. और लैग मतलब होता है किसी चीज में पीछे रह जाना, ठीक है. यानी कि अगर कहूं तो सिंपल इंग्लिश में इसका जो डेफिनेशन होगी वो है मेक स्लो प्रोग्रेस. तो अगर किसी भी चीज की अगर जो प्रोग्रेस चल रहा है
तो वो अगर धीरे धीरे चल रही है, बहुत ही धीरे चल रही है, तो आप ये बिल्कुल उस जगह पे वर्ड यूज करिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने देखा कि जैसे भोपाल का एग्जांपल दे सकता हूँ कि वहां पे मेट्रो का काम शुरू हुआ, ठीक है। अब मेट्रो का जब काम शुरू हो रहा है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम धीरे धीरे चल रहा है, मतलब आप कह रहे हो कि भैया मेट्रो प्रोजेक्ट इज लैगिंग, फाइन, लैगिंग, तो आप यहाँ लैगिंग भी बोल के छोड़ सकते हो। सो व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड करने का, तो आप उस समय यूज करना जब आपको कभी किसी के साथ कंपेयर में दिखाना हो कि उससे पीछे चल रहा है ये, तो आप बिहाइंड वर्ड को यूज करना। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम लैगिंग बिहाइंड यू, सो मुझे आई एम लैगिंग यू नहीं होगा ना, तो आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम लैगिंग बिहाइंड यू का मतलब है कि मैं आपसे पीछे चल रहा हूँ। यानी अगर आप मेरे साथ में जॉब करते हैं, आप मेरे साथ के क्लासमेट्स हैं, और अगर आप स्टडीज में मुझसे आगे हैं, अगर आप हर चीज में मुझसे आगे निकल गए हैं और मैं आपके पीछे रह गया हूँ, तो दो वर्ड एक साथ आप यूज कर सकते हो। द फर्स्ट इज लेग बिहाइंड, ठीक है। सो आई एम लैगिंग बिहाइंड यू, फाइन। जैसे हो सकता है कि आप बात कर सकते हो कि अ, इंडिया में बहुत सारे ऐसे, जो हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो देयर आर मेनी सेक्टर्स विच आर लैगिंग बिहाइंड, जहाँ पे वो पिछड़ रहे हैं, वो पीछे की तरफ रह गए हैं, सो दे आर लैगिंग बिहाइंड अदर सेक्टर्स। तो जो अदर सेक्टर्स आगे जा रहे हैं और वो उनके पीछे हो गए, सो यू कैन से दैट कि गेम्स के अंदर स्पेशली अगर मैं बात करूं, सो क्रिकेट में तो बात आप बात कर सकते हो कि ही इज लैगिंग बिहाइंड हर, ही इज लैगिंग बिहाइंड हर। अच्छा, यहाँ पे याद रखना कि याशी मैम, लैग बिहाइंड का जो मतलब आएगा, तो वो उसे पिछड़ रहा है ना। सो अगर ही इज लैगिंग बिहाइंड हर का मतलब है पिछड़ना, पीछे नहीं पड़ा हुआ। ये मत सेंटेंस समझ लेना कहीं गलती से, अगर आपको ये समझ में आ कि वो किसी इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, सो वी डोंट यूज दिस ग्रामर इन दैट सेंस, ओके। ये है पिछड़ जाना। पिछड़ जाना का मतलब है कि आप बात कर सकते हो कि आप हमेशा 80s प्लस में आपके परसेंटेज बनते हैं, 90s में बनते हैं, और अगर आपके जो ब्रदर हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो 60s में ही नंबर लेके आ पाते हैं, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि सर माय फ्रेंड्स आर लैगिंग बिहाइंड मी। सो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, आपको किसी काम में पीछे हो अपने दोस्तों से, तो आप बोल सकते हो आई एम लैगिंग बिहाइंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स इन केमिस्ट्री, सम इन पिछड़ जाना, ठीक है। या योर स्माइल tells me that you understood what I meant to make you understand. So जो मैं कह रहा था यहाँ पे लैग बिहाइंड का ये वाला यूज होगा, फाइन। सो यूज कैन से दैट मैनी पीपल लैग बिहाइंड, सो बहुत सारे लोग हैं जो पीछे पिछड़ जाते हैं, ठीक है, लैग बिहाइंड करते हैं। आई थिंक सम ऑफ रूरल एरियाज, तो some of rural areas, though some rural areas are lagging behind urban areas. I'm lagging behind my brother, so you can say that I'm lagging behind my brother, ठीक है। तो पिछड़ गए हो आप अपने भाई से, सो भाई आगे चल रहा है, यू आर लैगिंग बिहाइंड, फाइन। एंड बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये कोई इंडस्ट्री है जो बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रही है। फॉर एन एग्जांपल, कई लोग जब जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं, वो लोग जब प्लानिंग करते हैं, तो इनका मानना है कि कई बार कि होटल इंडस्ट्री इज लैगिंग बिहाइंड, कि जो होटल इंडस्ट्री है वो लैग बिहाइंड कर रही है, जो रूम के चार्जेस हैं या जो भी है वो उतने अच्छे नहीं मिल पा रहे, तो दे आर लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। स्पेशली आप कह सकते हैं रूरल एरियाज में जो एजुकेशन है, और लैगिंग बिहाइंड, सो यू कैन से दैट यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं ग्रामीण इलाकों में, दे लैग बिहाइंड द स्टूडेंट्स इन द अर्बन एरियाज। आप ये बात कर सकते हो, आप ये कह सकते हो जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आप बोल सकते हो, देखो कुछ एक्सेप्शंस निकल के आ सकते हैं, बट द रियलिटी इज दिस, बहुत बिटर ट्रूथ है ये। He's lagging behind me. So I was lagging behind my classmate. I'm lagging behind Prankush. Oh, one of my friends is lagging behind. Two नहीं आएगा पूजा मैम इसमें, इसमें two नहीं आएगा। His one of my friends is lagging behind me. Ashima Mall is lagging behind
डीबी मॉल, ओके। ताजमहल मॉल पीछे। ही इज स्पेलिंग चेक करना लेग बिहाइंड की दिव्यांशी मैम। ठीक है, स्पेलिंग जरूर चेक कर लो। हाँ, एल ई नहीं है, ये एल ए है। ठीक है। सो सुधीर सर, आप भी LAGGING, जब इसमें ING लगाओगे तो डबल जी हो जाएगा, जब इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाओगे तो भी जब डबल जी हो जाएगा। सो ही इज लैगिंग बिहाइंड हिज फ्रेंड्स, मैनी यूट्यूब चैनल्स आर लैगिंग बिहाइंड पॉपुलर चैनल्स। या women are lagging behind in rural areas। आप कह सकते हो कि जो महिलाएं हैं वो पिछड़ रही हैं। हम्म Okay, I'm lagging behind one of my class friends. Okay, you're lagging behind. Ask yourself, why are you lagging behind your friends? Fine. So, पूछो अपने आप से कि आप दूसरों से क्यों पिछड़ रहे हो। और आप एक बहुत स्पिरिचुअल आंसर दे सकते हो इसके लिए, बहुत ही डीप है ना। दैट एवरीबडीज स्पेस इज नॉट द सेम, सम पीपल आर इन हरी, बहुत लोगों को बहुत जल्दी लगी हुई है। सो ऐसा होता है, एंड कुछ लोगों को जल्दी नहीं है, सम पीपल वेट, नो। सो लैग बिहाइंड। ओके, अच्छा, ये दूसरा एक वर्ड इसी के साथ दे देता हूँ, काम आएगा आपको। वो है गो हेड, और इसके बाद ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये छठा भी वर्ड हो गया वैसे मैं था, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है लेग बिहाइंड के साथ गो अहेड आप बहुत यूज करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आसपास में दोनों के मीनिंग्स हैं, लेकिन नहीं, आसपास में नहीं है, उल्टे मीनिंग, अपोजिट मीनिंग है। सो गो अहेड का मतलब हो जाता है आगे। ठीक है, आगे बढ़ना, किसी से आगे रहने को गो अहेड कहते हैं। तो इफ somebody इज लैगिंग बिहाइंड यू, इट मीन्स यू आर गोइंग ahead ऑफ somebody। याद रखना, लैग बिहाइंड के बाद प्रपोजिशन नहीं आई थी। ठीक है, लेकिन जब आप गो अहेड यूज करोगे तो इसके बाद आपको ऑफ लगाना मस्ट होगा, जिससे भी आप आगे चल रहे हो, या जिसके लिए भी आप बताना चाहते हो कि वो कंट्री, वो सेक्टर किसी और सेक्टर से आगे चल रहा है। आई एम लैगिंग बिहाइंड समवन्स स्टोरी। समवन्स स्टोरी, यू आर लैगिंग बिहाइंड। आप किसी की स्टोरी से पीछे चल रहे हो। It doesn't make sense, Divyanshi ma'am. It seems to be an incomplete sentence. Dream Studio is lagging behind. I see nothing. Okay. आप बिल्कुल बात कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, एंड सो गो अहेड के बारे में बात कर लेते हैं। आप लेग लेग बिहाइंड की भी प्रैक्टिस हो रही है, देन वी गो अहेड विद गो अहेड ऑफ समबडी। सो कैन से यूज, जैसे मैंने कहा, आई एम गोइंग अहेड ऑफ माय फ्रेंड। सो एम के साथ याशी मैम ING, आई एम गोइंग अहेड, आई एम गोइंग अहेड ऑफ माय ब्रदर। सो आप अपने भाई से आगे चल रहे हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग अहेड। तो आगे बढ़ने के लिए गो अहेड यूज करोगे, ऑफ लगाना जब कभी किसी से आगे बढ़ने के लिए बात करोगे। सो आई एम गोइंग अहेड ऑफ माय, आई एम नॉट स्पेलिंग सुधीर सर। फिर से LE आ गया है, और LA यूज करना जरूरी है इसमें। ठीक है, LE नहीं है, दैट इज लैग, LAGGING। सो आई एम लैगिंग बिहाइंड माय फ्रेंड्स, आई एम गोइंग अहेड ऑफ माय कजन। ओके, साउंड्स गुड। आपकी कजन अगर देख रही होंगी ये वीडियो, तो वो कहेंगी, वेट एंड वॉच, आई शो यू who is going ahead. Just kidding. I'm going ahead of my brother. I'm going ahead of my friends. Okay. In which field are you going ahead of your friends or your cousins? So I'm going ahead of my friends in teaching. She will kill me. Okay, it's good. Uh, she will. I'm gonna. I'm going ahead of my friends. I'm going ahead of my classmates. My sister is, Pooja ma'am, is आ जाएगा. My sister is going ahead of my brother. Good sentence. My brother was नहीं आएगा.
दो गलतियां हैं इसमें। अ, दो तरीके से आप यूज कर सकते हो। पास्ट में जब हम यूज करते हैं तो अगर आप वॉज यूज करोगे अन्नपूर्णा मैम, तो एक्शन में आईएनजी लगा दो। माई ब्रदर वॉज लैगिंग बिहाइंड मी, यानी कि ये काम पास्ट में आप जारी दिखा रहे हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि कभी आप किसी टाइम पे भविष्य पास्ट में जो भाई थे वो आपके पीछे चल रहे थे, ठीक है, किसी भी काम में वो पीछे थे आपसे। और अगर आप हमेशा के लिए बताना चाहते हो कि वो आपसे पीछे थे, तो आप बता सकते हो कि माई ब्रदर लेग्ड बिहाइंड मी, या फिर आप सेकंड फॉर्म यूज करना, ठीक है। आई एम गोइंग अहेड ऑफ माई फ्रेंड्स इन स्टडीज, माई cousin was lagging behind me. uh, Ram Ram ji, Pranshu, Rakheja ji, it's good to see you second time. I don't know whether you've been regular with my classes or not. So, Ram Ram to you. So, I'm going ahead in my career. Career की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो स्पेलिंग है वो है कैरियर की, और कैरी करने के लिए जो चीज़ होती है उसको कैरियर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ट्रक्स के ऊपर लिखा रहता है गुड्स कैरियर, ठीक है। हमारी बाइसिकल में कैरियर हो सकता है। सो देयर वी हैव अ कैरियर, एंड जो हमारा भविष्य है वो करियर है, करियर। माई फ्रेंड इज लेगिंग बिहाइंड मी बट ही ट्राई टू गोइंग। जतिन सर, इसमें दो गलती हैं। अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो ट्राई में आईएनजी लगा, बट ही इज ट्राइंग टू, और टू के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है, बट ही इज ट्राइंग टू गो अहेड ऑफ मी, ठीक है। ये दो इसमें आपको सही करना है। शी वेंट बिहाइंड ऑफ मी, शी वेंट बिहाइंड ऑफ मी, शी वेंट बिहाइंड मी तो बन सकता है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। तो बिहाइंड, अहेड, I'm going ahead in my dreams. Mhm. Okay. I'm going ahead from my competitors. From नहीं, of. I'm going ahead from नहीं है, हमें हिंदी दिख रही है शायद इसलिए from दिमाग में आएगा, बाकी of लगाना। I'm going ahead of my competitors. So I'm going ahead of my competitors. I'm going ahead इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे आप बात कर सकते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल बोलिए आई एम गोइंग अहेड, या फिर आप बात कर सकते हैं इंडिया इज गोइंग अहेड इन यू नो ओलंपिक्स में, आगे बढ़ रही है, ओलंपिक्स में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इन अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो इंडिया इज गोइंग अहेड इन, इट्स गोइंग, अच्छा, गोइंग ग्रेट गन्स भी मैंने आपको बताया था एक बार, वो जगह भी यूज करते हैं, इज गोइंग अहेड ऑफ हिज कॉम्पिटिटर्स, बट अभी जो था वो गो अहेड यूज कर रहे थे, लैग बिहाइंड यूज कर लिया हम लोगों ने। एंड thank you so much for being present in today's session. Thank you so much. Again, I can't use second form of go, but you're using with behind, Priya ma'am. आपको ahead use करना चाहिए ना, she went ahead of me, not behind. Second form is right, but the word is behind. We should use ahead. She went ahead of me. We can use this. Good night, Jatin sir. So have a sweet dream. Take care of yourself. And Pooja ma'am, take medicines and get well soon. Hope to see you tomorrow with the full energy. Radhe Radhe. It's good to see you. We and Karma. Smart city work is going ahead. आगे बढ़ रहा है। Thank you so much, sir. Divyanshi ma'am, good evening. Thanks to your brother also. Say thanks on my behalf also, that he helped you attend my session. Thank you, Yashi ma'am. Have a sound sleep. Ciao. Simi ma'am. Some outsiders in Bollywood are going ahead of insiders. Good sentence, but इसमें आर नहीं था. Some outsiders, sorry. Some outsiders
Sorry, I couldn't notice that. It's fine, Priya ma'am. Pushpa movie is going ahead. Going ahead of other movies? Don't know. Good night. Good night, Annapurna ma'am. Good night, Mohit sir. Good night, Kabira ma'am. It was slip of typing. Slip of typing. Good night. Okay, Priya ma'am. Good night, we and Karma. So, good night, Sanidhya sir. Take care of yourself too. Good night, Sudhi sir. It was nice to have you today. So, over this note, I'd like to say India is going ahead in Olympic medals, winning Olympic medals. No? So going ahead. Ciao. Right, sir. Chilo. It's time, bro. Thanks, sir. Have a good night. Good night, all you people, you lovely people. Thank you.